अरे भाई साहब, इस बार हमें जीएसटी कितना देना होगा? मैडम, जितनी भी आपने आउटवर्ड सप्लाई की इनवाइस काटनी है सब पे जीएसटी देना है। क्यों, इस बार हमें कोई आईटीसी नहीं मिलेगा? आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट तब मिलता है जब आपके सप्लायर ने इनवाइस टाइमली अपलोड की हो। एक भी इनवाइस टाइमली अपलोड नहीं है, वो रोड लोग रिटर्न ही नहीं फाइल करते अपने, तो कहाँ से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दें। हाय फ्रेंड्स, दिस इज सी एच विनेश सोगी. We just discuss what are the core provision is applicable in respect of GST, goods and service tax. शुरू से ही हमें ये लगता था गुड्स एंड सर्विस टैक्स बहुत सिंपल है, बिजनेस फ्रेंडली है, और हमें पुराने ओल्ड रिजीम से जो 17 टैक्सेस एक्यूमुलेट किए गए थे उनसे हमें काफ़ी रियायत मिल जाएगी। मगर सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट नाउ। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब सप्लायर ने इनवाइस अपलोड की होगी। अगर नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी, अगर टाइमली नहीं करेगा तो अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आइए समझते हैं कब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, कितना मिलेगा, और ज़्यादा क्लेम कर लिया तो इंटरेस्ट आपको और रिवर्सल कैसे कैसे करना है। So basically this is the analysis of GST input tax credit with latest development. So credit on the basis of 2B as the invoices uploaded by the taxpayer in their GSTR1 timely. So timely is important part. Suppose we are filing 3B for the month of September, we should recommend that you should file after 30th October only, so that all the input tax credit get reflected in 2A 2B. So what are the invoices ITCs get reflected for the purpose of September? So all the invoices uploaded by supplier during the period of 12th September 21 to 11th October 22 get reflected in ITC. So all invoices uploaded after 11th October, you are not eligible for इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो भाई हम क्या करें, हमारे सप्लायर ने अपनी इनवाइस टाइमली नहीं अपलोड करी। हाँ, इस वाले केस में 5% की रिलैक्सेशन दे देते हैं गवर्नमेंट। कहती है रेस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी क्रेडिट इफ इलेजिबल इनवाइस इज नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर। तो करंट कैलेंडर ईयर में यहाँ पर 5% की रेस्ट्रिक्शन है। वट एवर इलेजिबल ITC अपेयरिंग इन 2B, you can go up to 105%. So this limit was in the calendar year 2020 10%, during the period 9th October 19 to 31st December 19 20%, but it's go down to 5%. Now we can claim up maximum 5% of that. Suppose our 100 number of invoices, our ITC showing in 2B is 1 lakh, एंड एक ऐसा सप्लायर था भैया, उसने अपना इनवाइस अपलोड नहीं करा, जिससे हमारे को 6000 का ITC नहीं मिला। तो मैं तो केवल इसका 105% तक जा सकता हूँ, 1,05,000 तक। तो इस वाले केस में इसका 1000 का ITC नहीं मिलेगा। तो हाउ द दिस ITC सिस्टम वर्क, वी जस्ट अंडरस्टैंड. So section 16 is talk about the eligibility and condition and time limit for availing ITC. So what is that? You must have tax invoice, goods is must be delivered to at your place, and supplier must uploaded their tax invoices at the GST portal, और आपने रिटर्न फाइल कर दिया तभी आपको ITC मिलेगा. Then we discuss section 216 to AA. This is the important section amended by the CBIC with rule 36(4). There they have given 5% restriction. So all the we will get input tax credit on the basis of invoices uploaded by the supplier. If don't upload it, we will lose the credit eligible once the supplier upload the invoice.
However, relaxation for restriction utilization is given in rule number 36(4). We can take up to 5%. So this is my view, this is my analysis. So moreover, a new section called 43A, which override, have a effect start with the word notwithstanding anything contained in this section. So now, if suppose you have a tax invoice but the supplier has not uploaded in their GSTR1, then you did not get tax credit because of this important section 43A. So this is more interesting. Suppose I am a small medium MSME entity, only few purchases are there, all those supplier have not uploaded any invoice. So मैं 5% किसका लूँगा, 105% किसका करूँगा, किसी का भी नहीं करूँगा. मेरे को तो कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने ही नहीं वाला. कब मिलेगा, जब वो सप्लायर अपलोड कर दे. और यहाँ ये समझ लेते हैं, सप्लायर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है तो उसको ऑप्शन है मंथली रिटर्न फाइल करने की. वी कैन कन्विंस देम, आप अपनी मंथली रिटर्न फाइल कीजिए सो दैट हमें आईटीसी मिलता रहे, बराबर मिलता रहे. ये नहीं है कि जनवरी का आईटीसी में जो है मार्च में मिलेगा. नो, आप अपनी IFF में रिटर्न फाइल करते रहेंगे मंथली बेसिस. तो एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, लिटिगेशन चल रही है. जीएसटी में लोगों के पास रवन्ने आ रहे हैं, आपने ऐसे आईटीसी क्लेम किया है, ये आपका मिसमैच है, 28 आपका मिसमैच हो रहा है IT 3B से. आपने जो सेल दिखा रखी है वो मिसमैच हो रही है, जो आपने टैक्स ऑडिट अपने इनकम टैक्स में रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं. तो इस टाइप के सोकोस नोटिस आ रहे हैं. देन वी हैव टू प्रॉपर रिप्लाई. तो सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट थी, राधा कृष्ण इंडस्ट्री वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें क्या करा गया था कि बैंक अकाउंट अटैच कर लिए गए थे ड्यू टू एलिगेशन ऑफ फेक इनवाइसेस. सो व्हाट द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द पर्पस ऑफ GST एक्ट इज लॉस्ट by manner in which tax law is enforced in our country. So taxmen cannot see all businesses as being fraudulent. हमें सबको नहीं समझना चाहिए कि सभी आवाम में, आप समझ गए होंगे कि फ्रॉड मैनर में नहीं समझना चाहिए. हमें सबको कुछ ना कुछ इस तरीके से करना चाहिए. आजकल डिपार्टमेंट क्या सोच रहा है कि भाई सभी ने फेक इनवाइसेस, अरे भाई कुछ लोगों ने गलत तरीके से इस एक्ट को यूज़ किया है, फेक इनवाइसेस कर रहे हैं. वो अपने GSTR1 तो फाइल करते हैं बट 3B फाइल नहीं करते, अपनी टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करते. उसके बेसिस पे आप बायर को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से मना कर देते हो. सेक्शन में आ गया 43 कैपिटल A में कि इफ़ सपोज buyer is involved in particular fraud and taking input tax credit on the basis of fake invoices, then joint liability है buyer की भी seller की भी. तो उसका input tax credit के लिए रोक सकता है वहाँ पर. तो this is the how to face department investigation, what are the modus of operandi is being managed by the income tax GST department, what are the type of letter communication issued by them, and without citing of any provision they simply issue letter. Most of them DIN number is not there, section is not mentioned in which section they are issuing the notice. सो कोस नोटिस तो ऐसे हो गया कि बस रोजाना इशू करे जाओ. कोई भी ऑफिसर किसी को भी इशू कर रहा है, भाई आपकी जुरिसडिक्शन है तो ये भी समझ लेते हैं कि भाई अथॉरिटी विदाउट जुरिसडिक्शन आप इशू कर रहे हो. समन इज बीइंग इशूड रिपीटली, समन में फिजिकल प्रेजेंस होती है बिजनेसमैन की, वो भी आप ऐसे इशू करे जा रहे हो. वहीं इशू करना चाहिए जहाँ असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि हाँ ये दिस इज़ अ जेन्युइन केस.
Summon are issued by different officer on the same subject matter which is not advices under this law. So इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी का कोई प्रोविज़न ही नहीं है और इसमें कभी भी कोई इस तरीके से बात थी नहीं. So department audit. Section 65 is empowered commissioner to issue notices for the purpose of departmental audit. Rule 101 में डिपार्टमेंट आपको ऑडिट करने के लिए नोटिस भेजेगा. 15 दिन पहले नोटिस भेजेगा. 3 महीने में वो ऑडिट कंप्लीट होना है और मैक्सिमम 6 महीने तक आप पे समय सीमा है. सो फेक इनवाइसेस का केस है, सो कॉज नोटिस हैं, हमें इन सब का रिप्लाई प्रॉपरली करना है. इफ द सेलर डज नॉट पे टू गवर्नमेंट कैन द लीगल ग्राउंड टू डिनाई इनपुट टैक्स क्रेडिट. सेलर ने बोनाफाइडली परचेस करी है, ये मानते हुए करी है कि मैं तो भाई गलती पे नहीं हूँ, मैंने तो जो भी परचेस करी है जेन्युइनली परचेस करी है. अब उसने जिससे परचेस करी सप्लायर से, उनने फेक क्रेडिट यूटिलाइज किया हुआ है, उनने फ्रॉडलेंट वर्किंग करा हुआ है. तो यहाँ पर सेलर गलती पे नहीं है, आप पनिश उसी को कर सकते हो जिसने गलती करी है. तो दिस इज़ द लीगल प्रोविज़न और इसी पे ही केस लोग आए हुए हैं. इसी तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं, ऐसे ही रिप्लाई कर रहे हैं. हाँ, सेलर भी इन्वॉल्व हो गया फ्रॉडलेंट मैनर में काम करने के लिए, उसने भी मिस यूटिलाइज किया इनपुट टैक्स क्रेडिट को, फ्रॉड किया. तो वहाँ पर हम उसको देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो पावर टू अरेस्ट सेक्शन में है, ठीक है. तो दोस्तों आपको होप सो जीएसटी के समराइज प्रोविज़न प्रैक्टिकल मैनर में बहुत कंसाइजली मैंने लिखे हैं यहाँ पर, वो समझ में आए होंगे. अगर आपने अपनी रिटर्न टाइमली नहीं फाइल करी है तो उसके लिए भी एमनेस्टी स्कीम इज़ इन फोर्स फॉर विच ड्यू डेट इज़ 31 अक्टूबर 2020. आप अपनी जीएसटी की 3B रिपोर्ट रिटर्न टाइमली फाइल कर सकते हैं. उस केस में अगर आपकी नील रिटर्न है, मैक्सिमम 1000 रुपीज़ आप पे लेट फीस लगेगी फॉर पर्टिकुलर दैट मंथली फीस. आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक की है तो आपको 2000 रुपये, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक 5000 रुपये, 5 करोड़ से ऊपर 10,000 रुपये की लेट फीस लगेगी. तो आप अपनी जीएसटी की रिटर्न्स को नॉर्मल कर सकते हैं. तो यहाँ तो हमें, अगर हम नॉर्मल नहीं करेंगे तो क्या होगा, डिपार्टमेंट उसको जीएसटी को डीएक्टिवेट कर देगा. एक हाँ फिर इस तरीके से भी मार्केट में है कि भाई एक जीएसटी डीएक्टिवेट हो गया तो हम दूसरा जीएसटी ले लेंगे. दोस्तों उस वाले केस में आपके जीएसटी नंबर के आखिर में लास्ट में 3rd अल्फ़ाबेट में 2 नंबर लिखा हुआ होगा. आपने फर्स्ट की तो लायबिलिटी डिस्चार्ज करी नहीं, एक नया जीएसटी नंबर ले लिया, तो वो तो केसेस एज इट इज़ ओपन है, उसको भी रिजॉल्व कीजिए. तो हम जीएसटी को एक बहुत ही तरीके से लेना चाहिए, जो हमारे को इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है उतना ही लेना चाहिए. मैं अपने ऑफिस में ये फ़ोन यूज़ करता हूँ और इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता हूँ, ये मेरा पर्सनल यूज़ है. इसमें मेरे को 5% क्रेडिट इसका डिसलाउ करना है क्योंकि ये मेरे पर्सनल यूज़ आ रहा है, नॉन बिजनेस पर्पज से यूज़ आ रहा है. आपकी सारी एक्सपोर्ट होती है, एलयूटी की बेसिस पे एक्सपोर्ट करते हो तो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, इसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. ब्लॉक हो गया आपका क्रेडिट सेक्शन 17. आप होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, ब्लॉक है, नहीं मिलेगा. आप होटल में जाके ठहरते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, जाके मैं मुंबई जाता हूँ बाय फ्लाइट से और मुंबई में स्टे करता हूँ. आई गिव माई पैन नंबर, जीएसटी नंबर फॉर अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट. नो, सिंस यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, so hotel will charge CGST, SGST. That input credit is not allowed for your business purpose. It is allowed only if you are registered in that particular state. So ISD के प्रोविज़न है, आपकी प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया में है, 2636 आप पे जीएसटी नंबर है और आप सेंट्रलाइज बिलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ से सारा आईटीसी आईएसडी के थ्रू रूट कीजिए.
सेंट्रलाइज बिलिंग कीजिए. दैट सेंट्रलाइज बिलिंग कैन बी थ्रू योर HO और रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ योर कंपनी. सो disallow ITC in respect of exempt supply, in respect of block supply. Important provision is that you have to make payment to the supplier within 180 days in respect of particular invoice. Invoice date से 180 days के अंदर पेमेंट कीजिए. अगर नहीं करी, इन दैट केस आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कीजिए, आउटपुट लाइबिलिटी में जोड़िए और उस पर इंटरेस्ट भी पे कीजिए, क्योंकि आपने एक्सेस क्रेडिट यूटिलाइज किया है. सेक्शन 50 में आपको 24% इंटरेस्ट देना पड़ सकता है एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज की केस में. आपने लाइबिलिटी शॉर्ट डिस्चार्ज करी है तो उस पर इंटरेस्ट पे कीजिए. टाइमली नहीं फाइल करेंगे GSTR1 3B, आप पे लेट फीस लगेगी. डिपार्टमेंट आपका GST नंबर कैंसिल कर देगा. तो दिस इज द समराइज थिंग. नाउ यू डोंट नीड टू गेट ऑडिट फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फॉर्म 9C. You have only file form GSTR 9. सेल्फ असेसमेंट का केस है, आपको 9 में ही फाइल करना है. तो दिस इज द समराइज प्रोविजन. होप सो you like this video, and if you want to encourage me and want same type of knowledgeable video in future, you subscribe and click on bell button. Thank you दोस्तों, thank you. अरे भाई साहब, इस बार हमें GST कितना देना होगा? मैडम, जितनी भी आपने आउटवर्ड सप्लाई की इनवॉइस काटनी है, सब पे GST देना है. क्यों, इस बार हमें कोई ITC नहीं मिलेगा? ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट तब मिलता है जब आपके सप्लायर ने इनवॉइस टाइमली अपलोड की हो. एक भी इनवॉइस टाइमली अपलोड नहीं है, वो लोग रिटर्न ही नहीं फाइल करते अपने, तो कहाँ से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दें?